the board, but since yesterday I'm not feeling well, so I don't want to spend so much of energy standing and getting more weak. So I chose to show the screen, but as and when we go ahead with the chapter, I'll try to take it on the board only. Okay. Acha. Now, before going ahead with this, we will see some क्या बोलते हैं, examples of day-to-day uses of water or some different products. So we will study the concept, but before that, let us see some examples. What examples we're talking about? Have you ever heard of this chromatographic analysis method? ये सुना है कभी? No. ओ भाई ओ आराम से आरती थोड़ी हो रही है. By the way, may Lord Ganpati bless all of you. Today is Ganesh Chaturthi, so let us pray to God that everything is fine and good in everyone's life. So chromatographic analysis, chromatographic paper नहीं पढ़ा 9th और 10th में भी नहीं कभी सुना है इसका नाम? No, sir. 11th में तो आएगा, 11th में आएगा बेटा आपको. So chromatography 11th में आएगा, 12th में भी आएगा, ठीक है. Chromatographic analysis, there's a separate chapter, basic analytical techniques and methods, उसके अंदर आएगा इसका details, ठीक है. So chromatographic analysis is a method in which different chemicals are separated into layers, like you can see blue, red, yellow, brown, वैसा, ठीक है. Then सुना होगा आपने softening of hard water और soft water, ये आपको पता होगा, right? Yes. Soft water में we can wash the clothes easily, but in hard water it is difficult to to make a foam of the soap. ये पढ़ा रहेगा आप लोग. In action soap, जब हम लोग एक बकेट पानी के अंदर सर्फ मिलाते हैं और उसके अंदर गंदा कपड़ा डालते हैं, तो वो गंदा कपड़ा कैसे साफ होता है, ठीक है. What is the actual action of soap occurring on that, ठीक है. तो that we will look into, और rather उसका phenomenon भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Purification of water. Purification of water जो घर में प्योरीफायर रहता है ना, उसका मेथड एक्चुअली क्या होता है, how is it, what are the substances used and what is the functioning behind it and all, ठीक है. These are some certain day-to-day simple activities either in the lab or in the household which we are seeing, but we are not aware of the process which is happening. So before going ahead to the actual new word which you will study, let us first discuss something which you already know. So I am assuming everybody in this class is aware of the word called as absorption. Yes. Yes. Right? Yes. Yes. Correct. Okay. ठीक है. तो ये absorption का मतलब क्या होता है? In simple language, if I talk about absorption is to soak the entire substance into one's whole mass or body. ये मैंने इंग्लिश में बहुत बड़ा बोल दिया. अभी absorption का सबसे easy example मैं आप लोगों को देता हूँ. Sponge, पता है सब लोगों को sponge? Yes. Yeah. So if you take that sponge and if you keep it in water, what happens to the sponge? The sponge soaks in all the water. Yeah, very good. And the sponge becomes heavier. If you pick up that, so if you pick up that sponge and if you press it, all the water will drain out, right? So when you keep the sponge in water, the sponge, it sucks in all the water, it soaks in all the water, and it is not only in some part, but the entire sponge will become wet, right? अच्छा, अभी इस स्पॉन्ज की जगह अगर मैं ये डालूं, क्या बोलते हैं, क्लॉथ, oh sorry, yeah, क्लॉथ, वो मेडिसिन की वजह से आई एम फीलिंग अ बिट स्लीपी. So
cloth bolo, paper bolo, right? The entire thing becomes wet. Entire thing becomes wet. Acha. Soil. Abhi, yeah, soil. Very good example of absorption is soil. Very good absorption is the tree roots. ठीक है? They also absorb water ना बेटा. वो पानी ground में से लेकर के roots पानी को absorb करके leaf तक पहुंचाते हैं. Throughout the body of the tree, the water is going. So absorption is a process. It is a bulk phenomenon. It is a process in which the entire substance is mixed with another substance altogether. Now, when I say mix, beta, I'm not making particles of any one particular substance and mixing. What is happening is एक पूरा अक्खा substance है, उसके throughout उसका bulk मतलब उसका body, throughout its body, some other substance is spreading. समझे बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? एक मस्त full fledged bulk substance है, उस पूरे substance का bulk में, उसके throughout mass में something is spreading uniformly. That is what I am discussing about absorption. ठीक है? Everybody knows this. ये हमने पढ़ा है बहुत बार बचपन में word absorption का. ठीक है? अच्छा. Now the interesting part which we need to look in 11th standard is it's another counterpart called as adsorption. Adsorption. ये तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा. अब अगर मैं आपको absorption या adsorption में difference बताने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे कि B और D का difference है, right? उसमें absorption होता है, इसमें adsorption हो जाता है. तो इसके अंदर उसका B निकाल के इसका D डाल दो तो एक ही word है, ज्यादा फर्क नहीं है. But दोनों phenomenon are way too different. They are entirely two different phenomenon. Okay. Now, what is the difference? What is adsorption? That is more, we need to understand that a little. What is adsorption? So, adsorption, na beta, it is a surface phenomenon. Adsorption is the surface phenomenon, and absorption is a bulk phenomenon. So, I will today in today's lecture we'll only focus on understanding what is adsorption. इसका concept अपने को अच्छे से समझने को होना. ठीक है? अच्छा. अभी look at this. Look at this. White color का आपको दिख रहा है, that is a surface, right? Can you give me any other example of surface which you think is an example of surface? Ground. Very good, beta. Ground. Floor. Wooden planks. Wooden Tiles. plank. Excellent. Tiles. Tiles. Very good. Seabed. Very good. Table. Seabed. Table. Very good. Table is a very good example of surface. Very good. And excellent. Very nice. Building terrace. Building terrace is an example of surface. Can I say Hand. wall? Hand. Can I say? Yes, your hand, your entire body is a surface, right? Yes. Yes. Can I say the wall is a surface? Yes. Yes. Can I say the ceiling is a surface? Yes. Yes. The fan? Yes. Your mobile phone? Yes. Laptop? Yes. Glass of water? Yes. मतलब कुछ भी बोल, मतलब मैं सारे एग्जांपल देने आपने yes बोलते No. हैं. No. मतलब just because I said कि आपने yes बोलना तो आप लोग no बोल रहे हो. Surface I like. of water. Very good. Surface of water. Surface of water will be an example of surface. So is it a hard and अभी तक हमने जितने भी examples discuss किए, आपने वो सब examples में ना सब solid चीजें ही बताया बेटा. क्या इसका मतलब ये होता है कि liquids का surface नहीं हो सकता? होता है. तो जब भी मैं glass of water की बात कर रहा है, तभी उसमें जो water है, वो उसका एक top में surface रहता है ना? Yes. Surface. किसका बेटा? Yes. गैस का सरफेस. मैं उस टॉपिक पे आता हूँ बेटा. लेट अस फर्स्ट डिस्कस सॉलिड एंड लिक्विड सरफेसेस. ठीक है? तो when for example I'm having a nice hot cup of tea besides me right now, so the tea inside this cup can form as a good surface for the dust in the air. Yes. If I do not drink this tea, and if I keep it still for a very long time, what will happen? Tea.
It will become bad. It will become डर्ट ठंडा। जमा होगा उसमें। हाँ अच्छा, इसके ऊपर डर्ट जमा हो जाएगा। डर्ट जम जाएगा। करेक्ट करेक्ट, उसके ऊपर डर्ट आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, द रिवर, द पॉन्ड, ठीक है, द वेल के अंदर का वाटर, ऑल दीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सरफेसेस। Yes. Yes. If I take oil in a plate, can I call it as a surface? Yes. Yes. Okay, ठीक है। चलो, do one thing, let us everybody be on mute, let me only talk now, ठीक है? If you have any doubt, then only talk, otherwise you can be on mute, okay? But I do understand कि कुछ घरों में guests वगैरह आए होंगे तो disturbance होगा, तो no issues, ठीक है? Okay, now this is what we are talking about as surface. तो surface समझना जरूरी है अपने को। तो जो भी examples हमने discuss किए ना, all those are very good examples of surfaces. Now let us discuss a common example of surface, like your studying table या फिर classes के अंदर जो bench होते हैं, they are also good examples of surface, ठीक है? अच्छा, now what's happening is we are not going to classes, ठीक है? अभी आप लोग अगर normal times होते तो क्या होता, classroom में lecture होता था, right? But अभी lecture classroom में नहीं हो रहा है, but हमारा classroom तो है वहाँ पे कल्याण में, कल्याण ईस्ट में, ठीक है? तो वहाँ पे क्लासरूम भी है, वहाँ पे डेस्क भी है, वहाँ पे बोर्ड भी है, सब कुछ है, बट अभी सब बंद है। एवरीथिंग इज क्लोज्ड, nobody is going there and nobody is coming out of there, so it is closed completely. So all of a sudden, say after say 1 month, somebody says कि भाई the pandemic is over, now people can start gathering in groups and start the lectures for students. So we will announce कि भाई your classroom lectures are going to start as the government ने बोला है, तो come to the class. Now we, you, me, everyone is entering or opening the lock and entering the class for the first time, ठीक है? And you are going inside the classroom. तो classroom, will you be able to sit on the tables and chairs, or will there be a difference? Dust. Very good, very intelligent people. We will not be able to sit over there because there is going to be a lot of dust in the classroom. Dust. Okay, yes, हाँ वही बोला बेटा मैंने भी, ठीक है? There is going to be a lot of dust in the classroom. अभी 6 महीने से कोई भी क्लासरूम के अंदर नहीं गया, कोई भी उसके बाहर नहीं गया, कोई फैन चालू नहीं था, कोई एसी चालू नहीं था, right? No water flowing, nothing. The windows, the doors, everything was closed. No air was going inside. Then how is it possible कि इतना डस्ट वहां पे आ गया? कौन डाल के गया उधर? कोई फेरी आई थी कि जो छिड़क के गई डस्ट को? This is a question. Dust in the air. Very good. Who's this? तेजस गढ़गे। Air. This is not air. This is Tejas. Tejas ने बोला that there are dust particles in the air, which is absolutely correct. कि in the air is consist of oxygen, nitrogen, carbon dioxide in very small amount, then all the noble gases and water vapor, and also it is comprised of dust particles. अभी ये जो एयर में डस्ट, अभी भी आप घर में बैठे हो ना, तो अभी भी आपके एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है। जस्ट बिकॉज फैन चालू है, जस्ट बिकॉज मूवमेंट चालू है, we are continuously moving, you are continuously, there's motion inside the house, or that is why dust is not settling. If you go to your native place, everybody goes to the native place and you keep your house closed, and when you come back after 10-15 days, you can see there is so much of dust in the house. You have to clean it rigorously. जब कोई मोशन नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है ना, तब सब दीवारों पे, सारे सीलिंग पे, अपने फ्लोर पे, सब जगह डस्ट जमा हो जाता है। अब the question is, the point is, ये डस्ट क्यों सेटल होता है? Why does the dust settle down on surfaces? Whether it is a book, whether it is your ceiling, whether it is your floor, whether it's your table, your mobile, anything. ठीक है? Why is the dust settling in the first place? So if you go to a very remote pond, I think आप लोगों को पता होगा, pond is a small lake kind of a place where the water is not moving, it is still. तो ऐसा एकदम जंगल के अंदर अगर पॉन्ड वगैरह में देखेंगे ना, तो वहां पे पानी एकदम स्टिल रहता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा, जब तक आप उसको पानी को मूव नहीं करेंगे तो उसपे बहुत सारा डर्ट वगैरह जमा हो जाता है।
तो Green, ऐसा green. काइको, हाँ यस बेटा, एल्गे आता है. क्या बेटा, Algae. Algae. algae, Algae, very algae. good. Algae का ये growth बात is something else. Algae का growth is because of the biological reasons. Amoeba. I'm talking only on the surface. ये बेटा एक chemistry रखते हैं ना इस क्लास को, क्यों biology करना है आपने? I can teach biology, I don't mind, but अभी let us teach chemistry. ठीक है. So we are more concerned of only the surface. अपन सिर्फ surface की बात करें. पानी के अंदर तो algae तो पानी के अंदर भी होता, ठीक है, वो तो अंदर भी जा रहा पानी के. अच्छा, so now why is this happening? तो ये surface के ऊपर ही क्यों रुकता है? अब जब मैं बोर्ड के ऊपर मार्कर से लिखता हूं तो मार्कर का जो इंक है वो बोर्ड के सरफेस के ऊपर ही रहता है, राइट? Yes. वो बोर्ड के Yes, अंदर yes. तक, वो बोर्ड के अंदर तक थोड़ी जाता है. Yes. बोर्ड का तो अच्छा Yes. खासा थिकनेस होता है ना, वो सिर्फ सरफेस पे ही रहता है. अच्छा, Yes. अगर आप Yes. एक प्लास्टिक बैग लोगे, एक मस्त लेयर्ड ऑफ प्लास्टिक बैग लोगे और उसको आप पानी के सरफेस के ऊपर रखोगे एक साइड से, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का प्लास्टिक के दूसरी साइड पे भी दिखेगा क्या अपने को? No. नहीं, No. सिर्फ No. उसी साइड पे रहेगा जिससे मैंने पानी के ऊपर उसको टच किया है, Touch राइट? किया था. Yes. Yes. अच्छा, अब जब टेबल के ऊपर धूल जम गई थी तब वो धूल सिर्फ टेबल के ऊपर थी. अगर मैं टेबल को कट करूंगा तो टेबल के अंदर भी धूल रहती है क्या? नहीं. No. No. नो. No. No. वेरी गुड. नो. वेरी गुड. अच्छा, यू अवेयर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? Yes. 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 रस्टिंग ऑफ आयरन Yes. सबको पता है. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, Rust. इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड. ये तुम लोग को पता हो, Yes. Yes. ठीक है? Yes. आयरन को रस्ट होने के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों का Oxygen. जरूरत होता है. ये 9th या 10th में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया रहेगा Yes. कि हमने आयरन का नेल्स लिया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, पर आयरन रस्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिला. फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जिसने सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया और उसके अंदर हमने नेल्स डाला, तो नेल को ऑक्सीजन तो मिला बट वाटर वेपर नहीं मिला, इसलिए वो रस्ट नहीं हुआ. और एक आयरन के नेल को हमने ऐसे ही रखा हवा में, तो वो रस्ट हो गया. वो काइको रस्ट हो गया बिकॉज उसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों साथ में मिला. ये वाटर कहां से मिला बेटा? वाटर वेपर, राइट? Water एयर vapor. में वाटर वेपर है. इसीलिए आयरन का जो ग्रिल्स होता है, आयरन का जो रॉड्स होता है, आयरन का जो स्टैचूज होता है, दे are rusted easily in the rainy season. Why? Because in the rainy season it is raining, water is there, plus there is free oxygen available in the air. So the combination of moisture as well as oxygen, what do we say, promotes the formation of iron oxide on the surface of iron. Now what did I say? On the surface of iron. अभी ऐसा आयरन रॉड को अगर मैं कट करेगा, ऐसा आरी से कट करेगा बेटा, मैं 100 से कट करेगा, तो वो आयरन के वो आयरन के अंदर भी रस्ट रहता है क्या कि सिर्फ सरफेस के नहीं. ऊपर No. रहता है? No. Surface पे रहता है. नहीं. सिर्फ Surface. सरफेस पे रहता है, अंदर तक नहीं जाता है ना? सिर्फ ऊपर ही Yes. ऊपर होता है. क्योंकि Yes. अंदर वाला जो आयरन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेयर बन गया है. तो आयरन ऑक्साइड का जो लेयर बन गया है उसने अंदर वाले आयरन को ऑक्सीजन मिलने नहीं दिया, इसलिए अंदर वाला आयरन रस्ट नहीं हुआ. ये बड़ा करते करते Yes. 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 आप लोग ने पॉन्ड्स का ना बहुत पहले ऐड आता था, I don't know कितने लोग ने देखा है वो पॉन्ड्स के ऐड में, जब वो चारकोल वाला फेस वॉश लेक आया का था. रहा था. क्या बेटा? लेक एडवर्टाइजमेंट. लेक लेक का एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? लेक का इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा? पॉन्ड्स का बात कर रहा हूँ. नहीं पॉन्ड्स, Pond's द powder. फेस वॉश बेटा, गूगली वॉश, Yeah. वो फेस वॉश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो फेस वॉश का एड अगर आपने देखा होगा, जब वो लोग ने अपना चारकोल वैरायटी निकाला था ना, तो लोग ने बोला था कि इसके अंदर हम लोग ने एक्टिवेटेड चारकोल डाला है, और ऐसा एक मतलब पूरा डर्ट से भरा एक ग्लास रहता है, उसके अंदर वो लोग एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं और वो ग्लास अचानक से साफ हो जाता है. वो ऐड देखा तुमने? Yes. No. Yes. 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 Colgate का ऐड था. भाई नहीं, कोलगेट का ऐड नहीं दिशा था वो. पटानी अरे Colgate का नहीं था. रेड था. देखा देखा. गार्नियर. नहीं. देखो वो किसी ना किसी फेस वॉश का था, वो या तो गार्नियर का था या तो फिर पॉन्ड्स का था. द ब्रांड डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द कॉन्सेप्ट. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अ कॉन्सेप्ट, राइट बेटा?
उसके अंदर ना वो एक एक्टिवेटेड चारकोल का गोला डालता है और जितना भी कचरा रहता है वो अचानक से साफ हो जाता है। वो देखा है? नहीं देखा है ना? तो आज देखना। Yes. देखा है Yes. देखा है देखा है। देखा है देखा है सर। ठीक है, ओके, फाइन, गुड। So this is where this adsorption phenomenon is coming into place. ठीक है, सामने देखो बेटा, एक मस्त सरफेस है, ठीक है, और गैस पार्टिकल्स है। अभी गैस पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस पार्टिकल। दिस इज अ गैस पार्टिकल। नीचे ऐसा मस्त मोटा सरफेस है। अभी वो सरफेस के ऊपर ना ये गैस पार्टिकल जाकर के बैठ रहा है उसके ऊपर। ये देखो, उसके सरफेस पे सिर्फ बैठ रहा है। वो गैस पार्टिकल्स बेटा उसके अंदर जा रहा है क्या? सर No. No. नो। सर नो हेलो बोलो बेटा। सर, आपने तो बोला था कि गैस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन। यस दे आर। तो अभी इस पे कैसे सेटल हो रहा है? क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा वो। I really appreciate your curiosity. Who is this बेटा? पीयूष। पीयूष डोकले। पीयूष, Yes. आज पहली बार सही बोला ना सर ने? यस हाँ, तो कल मैं पीयूष को सिखा रहा था अबाउट गैसेस, और पीयूष को हम लोग ने कल ये किया, क्या क्या किया था बेटा आपने? वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, ठीक है। यस तो उसमें मैंने पीयूष एंड फ्रेंड्स को बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अच्छा, बट दे हैव वेरी लेस इंटरैक्टिव फोर्सेस, है ना? कल डिस्कस किया था ना पीयूष अपन ने। यस हाँ, तो अभी ना बेटा, आज 6:30 बजे जो लेक्चर है मैं उसमें आपको रियल गैसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वो सारा मिथ एंड कॉन्सेप्ट्स टूट जाएगा आपका जब हम लोग रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी कैसा होता है कि गैस पार्टिकल मोशन में है, अग्रीड, बट गैस पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट तो हो सकता है ना, कैसे? बॉन्ड बनाने के लिए। मैग्नेट की तरह। यस यस नहीं, मैग्नेट का अट्रैक्शन नहीं है बेटा, बॉन्ड बनाने के लिए। Yes, ऑक्सीजन bond. गैस है बट ऑक्सीजन हाँ, हाइड्रोजन का oxygen. रिएक्ट करता है ना। यस क्लोरीन Yes. गैस है बट क्लोरीन हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है कि नहीं करता? Yes. राइट, Yes. तो रिएक्ट करता है तब वो अट्रैक्ट होता है ना दूसरे सब्सटेंस की तरफ। Yes. Yes. अच्छा, ये जो गैस Yes. पार्टिकल्स है ना, ये इसके अब ये सरफेस पे क्यों बैठ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में आने वाला है आगे। अभी से इतना समझ के लो कि गैस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन इजीली सेटल डाउन ऑन लार्ज सरफेसेस। ये देखो, ये देखो, गैस है ऊपर, नीचे सॉलिड है। ये गैस और नीचे वाले सॉलिड को कौन सेपरेट कर रहा है बेटा? सरफेस। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया। ऊपर हवा है, नीचे मेरा सॉलिड एक टेबल है। वो सॉलिड टेबल और हवा के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस। वेरी गुड, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड यू गॉट इट प्रॉपर्ली। किसने बोला बेटा ये सरफेस वाला आंसर? शुभम पाड़ी। शुभम पार्थी, ठीक है, ओके। So this surface, so now in this chapter, in the first half of the chapter, we are going to concentrate on surface chemistry. Till last year the name of the chapter was itself surface chemistry, ऐसा। So surface chemistry हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सरफेस पे क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ये क्यों होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, एंड ऑल। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन बिट ऑफ ऑल। ये देखो, इमिसिबल लिक्विड, मैं फिर से आता हूं, क्या वाला देख रहे हो? सॉलिड लिक्विड। Yes. Yes. सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल दिया है। तो अब ये सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स बैठेंगे। Yes. Yes. वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखो, लिक्विड लिक्विड, नीचे पिंक लिक्विड है, ऊपर ये ब्लू लिक्विड है। कंसीडर दिस एज ऑयल एंड वाटर। ये बेटा ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स ना, यस राइट? No. तो ऑयल Yes.
ऑयल और वाटर को अगर आप एक ही बॉटल के अंदर डालोगे ना तो दो मस्त अलग अलग लेयर बन के आएगा आपके साथ। Yes. Yes. अच्छा, Yes. तीसरा देखो बेटा, तीसरा एग्जांपल है लिक्विड एंड गैस। नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस का मॉलिक्यूल्स है, और दोनों के बीच में क्या है? सरफेस। वो जो रेड वाला हाईलाइट किया है बेटा, वो क्या है आपका? Surface. Surface. It is the boundary Surface. between the two phases. When I say phase, what do I mean by phase? Gas and liquid. Gas and liquid liquid or solid. Very good, very good. When I'm talking about phase, I'm talking about either solid or liquid or gas. In the first example which you see here, there is a phase separation because of the boundary, because of the surface boundary. We have a liquid and solid phase separation. In the second one, we have a liquid-liquid phase separation. And in the third one, we have a gas-liquid phase Liquid separation. ठीक है बेटा? Yes. इतना समझा सब लोग को? तो I will go ahead to the Yes. concept of adsorption now. अच्छा, बल्क फेजेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में दोनों के दोनों प्रेजेंट है। सॉलिड भी ज्यादा है, लिक्विड भी ज्यादा है, दोनों लिक्विड भी इंडिविजुअली ज्यादा जाता है, और लिक्विड और गैस भी। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है रेड लाइट हाईलाइटेड, दिस इज द बाउंड्री। सॉलिड डैश लिक्विड या सॉलिड स्लैश लिक्विड, आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। नाउ सरफेस केमिस्ट्री इज एन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड all these processes which you can see in front of you. इनमें से कौन सा वर्ड आपको फेमिलियर लग रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? Corrosion. 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 Electrode processes. Electrode process. Crystallization. Crystallization. हाय हाय हाय, ओके ओके। corrosion मतलब वही रस्ट होना। ठीक है, Dissolution. इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, Two electrode, cathode, anode. Two अरे ये electrodes, तो पुण्य- cathode, anode. हाँ, तो ये तो हमने पढ़ा है ना बेटा, कैथोड एनोड वाला है ना, ये Yes. तो पता है ना आप लोग। Chemicals. क्रिस्टलाइजेशन पता है बेटा सब लोग को? Yes. Crystal form होते हैं. क्रिस्टलाइजेशन आपको है 11th में, आप और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप Yes. फिक्र ना करें। अच्छा, ओके। Dissolution. डिसोल्यूशन क्या होता है बेटा? Yes. नहीं, yes, अलग क्या separate होता क्या है? जैसे sand और water. separate होना कि मिलना। Sand or water separate. ओके ओके Oil and water. Oil and water. ओके। अच्छा, जो एक और उसमें दिख रहा है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, वो पता है? No. नहीं। No. नहीं पता। कैटालिसिस पता है? Yes. Which क्या speeds होता the है? reaction? To Which speed speeds the the reaction. reaction without taking part in the reaction? Very good. That is catalyst, and the process in which a catalyst is involved is called as catalysis. Catalysis. Very good. Very good. Very good. Yes. तो कैटालिसिस भी हम लोग इस क्या बोलते हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैटालिसिस कैसे काम करता है एंड ऑल। ठीक है, Yes. तो ये सब एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन का जो हम लोग सीखने वाले हैं। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, करोजन, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, वो सब अपन हेटेरोजेनियस होमोजेनियस सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। Now, very important example. Hello, हाँ, oh, thing in between, beta. I am audible, right, guys? Yes. Yes. Yes, sir. Interrupting or something? Yes. सब चीज में yes बोलना है। अच्छा, this example जो हम लोग अभी समझने वाले हैं, the example which you see right now is a very important example. इससे आप लोग adsorption का concept समझेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देना। अच्छा हुआ मैंने ये लैपटॉप पे ही लिया, because it is more easier for you to teach with moving objects. ये सामने बीकर दिख रहा है जिसके अंदर लिक्विड है, Yes. Yes. वो जो दो ब्लू बड़ा बड़ा सर्कल है ना बेटा, दोज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया, पर उतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग टू मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल इन द बल्क
in the center of the liquid. I'm moving my cursor, so my voice might break over here. Can you see? Yes. Yes. Other molecule which we are going to consider, we are going to consider the other molecule at the surface of the liquid over here. Yes. एक लिक्विड, एक मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर है और एक सेम पानी का मॉलिक्यूल जो उसके जस्ट सरफेस पे है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? ये है तो सेम मॉलिक्यूल, ये है सेम कंपाउंड का पार्ट, स्टिल ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसके अंदर डिफरेंस आएगा। अब क्या डिफरेंस आएगा उसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सॉरी, द कॉन्सेप्ट इज कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस। नहीं सुना होगा पहले कभी, है ना? नहीं। No. Okay. Cohesive forces. The force of attraction between two similar molecules is called as cohesive forces. Water molecule के बीच में interaction, cohesive force. Oxygen के बीच में interaction, cohesive force. Hydrogen के बीच में interaction. I'm talking of the word interaction, ना बेटा? I'm not talking of bond formation. Two different words altogether. Remember surface इसमें solid state, हम लोग liquid state, कौन सा state था रे वो चैप्टर का नाम? जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे थे पहला वाला, states of matter, हाँ, States of very matter. good. States of matter में जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हम लोग ने different types of interaction देखा था, ठीक है? तो Yes. जब सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो अपन उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे. दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. ओके, बट when it's going to be between different molecules, it's going to be adhesive forces. Force of attraction between water molecule and oxygen gas, force of attraction between oil and say nitrogen gas, force of attraction between wood and say glue. ये बेटा glue पता है? Yes. Yes. ये बेटा फेविकॉल Yes. पता है सब लोग को? फेविकॉल, Yes. 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 फेविकॉल के डब्बे के ऊपर ना आप अगर कभी ध्यान से पढ़ो तो वहां पे लिखा रहता है इट इज अ अधेसिव ग्लू. I don't know Adhesive. how many of you all have read it. हाँ, Yes. Yes. लिखा Yes, रहता yes, है कि it is sir, a yes. adhesive glue. Yeah, Adhesive glue. adhesive glue means it is a glue which will make two different things stick together. It is a glue which will help two different things stick together. ऐसा. So just remember one thing. Cohesive force is a force of attraction between two similar molecules, and adhesive force is a force of attraction between two different molecules. याद रहेगा बेटा सब लोग को? Yes. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Hilika. लिख लिया. Very good. Anybody wants me to repeat? I'll do that. Yes. Cohesive force is a force of Sir, attraction spelling? between similar. Cohesive. Spelling? COHESIVE. Okay. COHESIVE. Cohesive. Yes. And adhesive. 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 ठीक है? अच्छा, तो अभी बेटा वो जो पानी का मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है? जहां पे मैंने मार्कर घुमाया वो दिखा बेटा? Yes. ये बेचारा इसके मुंह में छाले पड़ गई यस बोलते बोलते ना. जब भी मैं कुछ पूछता हूँ यही बेचारा यस बोलता है. कौन है? पीयूष डोकले ना? Tejas. नहीं सर. अच्छा, पीयूष नहीं बोलता. कौन बोलता है? तेजस Tejas. बोलता है. बेटा जब मैं क्लासरूम में आऊंगा तब मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा. आपने बहुत यस बोला मेरे लेक्चर्स में. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट. आप सब लोग यस बोलने मत लगना, सबको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो इट वाज अ Yes. फर्स्ट कम Yes. फर्स्ट सर्विस. No. नो नो नो, खत्म हो Yes. गई. ये पहली बार स्कीम निकलती है बस. मेरे पास एक स्कीम है. तो अभी देखो वो जो अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर है उसके आजू बाजू में दूसरे कौन से मॉलिक्यूल्स है बेटा? Water. Water. वेरी गुड, वेरी गुड. वाटर मॉलिक्यूल्स ही है. Water उसके आसपास सब सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं. तो Yes. उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो किसका आएगा? सब वाटर मॉलिक्यूल्स का ही Cohesive. आएगा. Molecules. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड हाँ. बेटा. उसके ऊपर Cohesive force. कोहेसिव फोर्सेस लगेगा. अच्छा, Yes. Yes. अच्छा. अभी Yes. जरा मैं मार्कर मूव कर रहा हूं तो शायद आवाज ब्रेक होगा, ठीक है? ये देखो बेटा, यहां से भी कोहेसिव फोर्स आएगा, Yes. यहां से भी कोहेसिव फोर्स आएगा, Yes. यहां से भी आएगा, हाँ. यहां से भी आएगा,
यस से भी, से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, उसको सब डायरेक्शंस में से फोर्स आएगा। देखा मैंने मार्कर कैसे मूव किया था बेटा? यस Yes. हाँ, उसको Yes. सब डायरेक्शन में से फोर्स आएगा। तो कैन आई से the force of attraction acting on this molecule inside this liquid is equal and opposite in all the directions? अगर एक Yes, मॉलिक्यूल उसको ईस्ट से खींच रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको वेस्ट से West. खींच रहा है। खींचेगा ये अगर Yes. एक मॉलिक्यूल उसको नॉर्थ से खींच रहा है तो दूसरा उसको साउथ से South खींच रहा साउथ है। से खींचेगा साउथ और जितना वो फोर्स लगा रहा है सारा फोर्स इक्वल है, जस्ट इन Yes. ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो उसके ऊपर Yes. नेट फोर्स Yes. क्या हो जाएगा बेटा? जीरो 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 ठीक है, या उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। जीरो तो इसीलिए वो जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर है वो स्टेबल रहेगा, अंदर ही रहेगा। Yes. Yes. चलो, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। बेटा जो लोग नहीं बोल रहे हो, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई थिंक दैट यू ऑल आर नॉट आस्किंग बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, please unmute yourself and ask questions. That is why we have this interactive online session, right? Like how Piyush asks me queries, ऐसा सब लोग पूछो बेटा। I really like that. Yes. So हाँ भाई हाँ, yes. Yes. तो वो जो अंदर का मॉलिक्यूल है ना, वो स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है? बिकॉज उसको सब डायरेक्शंस में से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा। Force. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा, मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अभी Stable ये है। मॉलिक्यूल की कहानी तो सुन ली हम लोग ने। अभी ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास जाएंगे। पहले अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात, ठीक है? ये देखो, ये जो बल्क ऑफ द लिक्विड है उसमें it experiences a balanced force of attraction in all the directions. These are the directions. Yes. But come to the molecule on the surface. Surface का जो molecule है बेटा, उसके आधे साइड में पानी है और आधे साइड में हवा है। दिख रहा है सबको? Yes. Yes. यस हवा है, यहाँ पे पानी है, पानी है नीचे पानी है, ऊपर हवा है। Yes. तो नीचे उसको कोहेसिव फोर्स है और ऊपर क्या है? Adhesive. adhesive force गुड, वेरी गुड। वो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है ना, जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल है, उसका फोर्स इज बैलेंस्ड है बिकॉज सब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। Direction. बट जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस्ड है। क्या है बेटा? Unbalanced. अनबैलेंस्ड। क्यों? बिकॉज नीचे कोहेसिव फोर्स है, ऊपर अधेसिव फोर्स है, तो कोई भी फोर्स उसको कैंसल आउट नहीं कर रहा है। सो जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं? वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर या फिर अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन में क्या करते हैं? वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं कि आओ भेटो और मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बैलेंस आउट करो। इसीलिए वो टेबल के ऊपर धूल जमती है। वो टेबल के अंदर धूल नहीं जाती, सिर्फ सरफेस पे रहती है। क्यों? बिकॉज सिर्फ सरफेस का पार्टिकल्स जो है उनका फोर्स अनबैलेंस्ड है। ये पानी के सरफेस के ऊपर धूल रहेगी, पानी के अंदर धूल नहीं मिलेगी until unless you stir the water. Are you understanding better what I'm trying to say? Yes. Yes. yes Right. That is why all these phenomenon, all this and this phenomenon which I just described in front of you is called as adsorption. And adsorption is a surface phenomenon and not a bulk phenomenon like absorption. Absorption में क्या होता है? पूरा का पूरा पानी स्पॉन्ज के अंदर मिक्स हो जाता है। बट adsorption में क्या हो रहा है? सिर्फ पार्टिकल्स सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। This is adsorption. Adsorption is your surface phenomenon. And why does it occur? It occurs because of unbalanced forces of the surface molecules. हाँ बेटा बोलो। Notes. इसका I notes. हाँ मैं देगा ना, डोंट वरी, मैं पूरा लिखा के देगा आपको। कॉन्सेप्ट समझा सब लोग को? Yes. Yes. Yeah. Anybody, any question, any doubt, or do you think that what I'm teaching is out of this world? I think there are a few students. Is it because of Ganpati Bappa Moria? नहीं सर, ये बताया नहीं था। What nonsense, पता नहीं था, सबको पता था। मैसेज नहीं आता। हाँ, यस, मैसेज नहीं आया था। Lecture. कोई बात नहीं। मोदक खाया सबने? नहीं।
Yes, yes. अरे मोदक खाने का वो नकली मोदक नहीं बेटा, उकडीचा मोदक, that is which is Yes, yes. Yes. I love that. Yes, yes. Good, good, good. Very good. Congratulations, beta. So did you understand this concept of adsorption, everyone? Yes. 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 Very good. ये बात ना मैं आपको एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस बताएगा। ये देखो, सरफेस जो मॉलिक्यूल है वो दो अलग अलग सरफेसेस है, ऊपर अलग फोर्स, नीचे अलग फोर्स। तो ऊपर अनबैलेंस फोर्स है, तो नीचे क्या होता है, नीचे का फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो फोर्स अंदर की तरफ उसको खींचेगा। और किसी सॉलिड को ले लो, चलो आप किसी सॉलिड सरफेस पे भी लेंगे ना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखो, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन, चारकोल। चारकोल इज अ वेरी गुड एडसॉर्बेंट। अच्छा, अब मैंने ये वर्ड यूज कर दिया तो मैं आपको बता देता हूं, आगे बताऊंगा, रुको पहले ये समझ लो। चारकोल को अगर आप ऑक्सीजन गैस के चेंबर में डालोगे ना, तो चारकोल के सरफेस के ऊपर ना ऑक्सीजन गैस एडसॉर्ब हो जाता है, सिर्फ उसके सरफेस पे। कैसे होता है ये देखो, oxygen molecules are attracted on the surface of the charcoal and they get adsorbed on the surface. Concentration of the gas on the surface of the charcoal is increasing. Everybody is observing this? Sir, color आ जाओ, different होता है. लिक्विड के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा बेटा। देखो, गैस मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होकर वहां पे रुक रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको उसका फोर्स बैलेंस आउट करना है, ठीक है। This phenomenon of attracting, retaining the molecules of a different phase on the surface is called as adsorption. Whatever I said, it made sense, right? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, this is known as adsorption. ये देखो, ये adsorption है। जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है ना, जो सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट, ADSORBENT। और जो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट। जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेंट। और क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं एडसॉर्बेंट। हाँ, हा महत्वाचा आहे, हा डायग्राम तुम्ही काढून घ्या। Sir, notes लिखा. हो हो बडा, हे लिहून घ्या, नंतर नोट देतो ना, कशाला काळजी घेतो? Why fear when I am here? बनाया सबने? Yes. Once done, please let me know. Done. Done, sir. Cool. ठीक है। बेट एंड एडसॉर्बेंट सबको कर लिया है। अभी मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे अभी दिस एग्जांपल विच वी सॉ, चारकोल और ऑक्सीजन वाला, चारकोल और ऑक्सीजन वाला, एक मिनट, आई टेक द नेम। केदार, केदार, आर यू देयर इन द लेक्चर बेटा? और गणपति बप्पा मौर्य चलेगा? किसका नाम लूं? यश, कोई यश है? मैंने ऐसे रैंडमली नाम यश बोल दिया। आई नो वन नेम फॉर श्योर, पीयूष। Yes. हाँ बेटा, ये एग्जांपल जो आपको सामने दिख रहा है चारकोल और ऑक्सीजन गैस का, इसमें एडसॉर्बेट कौन है और एडसॉर्बेंट कौन है, मेरे को बताओ क्लियरली। Adsorbate oxygen gas for
adsorbent charcoal or adsorbate oxygen gas? Very good, very good. Everybody understood, beta? Adsorbent is your charcoal Yes. and adsorbate is your oxygen gas. Oxygen gas. जो सेटल हो रहा वो एड्सॉर्बेट और जिसके ऊपर सेटल हो रहा वो एड्सॉर्बेंट। ये देखो बेटा, वो पार्टिकल्स उसके ऊपर बैठ रहे थे, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? Adsorption. अच्छा, और वो सरफेस के ऊपर से पार्टिकल्स निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना बेटा, वो एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट हो जाएगा। देख, पार्टिकल सरफेस के ऊपर बैठना इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। अभी टेबल के ऊपर धूल जम गया, ठीक है, वो एड्सॉर्प्शन हुआ। अभी आप लोग, हम लोग जाके उसको हाथ से साफ कर देंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको टेबल, उसको हटा देंगे उसके ऊपर से, राइट? तो जब उसको हटाया तब हम लोग ने एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट कर दिया ना, हमने पार्टिकल्स को सरफेस पे से हटा दिया, तो वो प्रोसेस क्या होता है? डिसॉर्प्शन। क्या होता है? डिसऑप्शन। अच्छा, Desorption. डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। पार्टिकल्स का सरफेस के ऊपर सेटल होना इज एडसॉर्प्शन एंड पार्टिकल्स का सरफेस पे से हट जाना इज डिसॉर्प्शन। ऐसा वो डिसॉर्प्शन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे आगे चल के। अभी ये देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सरफेस ऑफ निकल या पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस कैन इजीली बी एड्सॉर्ब। निकल या पैलेडियम मेटल का सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस कैन इजीली बी एड्सॉर्ब्ड। हम लोग ना एड्सॉर्प्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एड्सॉर्प्शन का मतलब समझाया कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है? तो ये एड्सॉर्प्शन क्या मतलब के टाइप्स क्या होते हैं, कैसा, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करता है, क्या इसको प्रमोट करेगा, क्या इसको वीक करेगा, वो सब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, ठीक है? These are different examples: charcoal and oxygen, water and dust particles, then water and gas particles, other gas particles, then nickel के ऊपर हाइड्रोजन या फिर पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन। Now adsorption is a surface phenomenon, but what is adsorption? Bulk phenomenon. Bulk phenomena. Bulk phenomenon. So if adsorption is a surface phenomenon, does it mean that if I have a bigger surface area, adsorption ज्यादा होगा? Yes. Yes. अगर इसके अंदर मैं ज्यादा चारकोल डाल दूं, मतलब चारकोल का विड्थ बढ़ा दूं, ऐसा ज्यादा मतलब उसको पाइल अप नहीं करना बट लेंथ वाइज स्प्रेड करना, अगर मैं चारकोल का एरिया ज्यादा बढ़ा दूंगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा ऑक्सीजन गैस का? Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, Yes. एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर ज्यादा सरफेस रहेगा तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, सिंपल एज दैट, है ना बेटा? हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये एब्सॉर्प्शन, अभी आप दो कॉलम्स बनाओ, हाँ, दो कॉलम्स बनाओ, एक में लिखो एब्सॉर्प्शन, दूसरे में लिखो एडसॉर्प्शन। बनाया? एक मिनट. अच्छा, सर आजू बाजू में रिलेटिव्स के घर पे गणपति के लिए मत जाओ, हाँ, ऐसे घर में से बैठ के प्रार्थना करो, डोंट मिक्स विद पीपल, इट्स नॉट सेफ। Yes. They're done. ओके, डन बेटा, लिख लिया? एब्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन लिख लिया? अच्छा, Yes. एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के अंदर लिखना इट इज अ बल्क फेनोमेनन और एड्सॉर्प्शन में लिखना इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। यहाँ पे लिखना बल्क फेनोमेनन, यहाँ पे लिखना सरफेस फेनोमेनन। फेनोमेनन का स्पेलिंग आता है सब लोग को? Yes. Yes. अच्छा, सेकेंड पॉइंट,
बेटा एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? बिकॉज स्पंज या फिर दूसरे सब्सटेंस के अंदर पोर्स रहते हैं, राइट? Yes. स्पंज देखा है आप लोगों ने? स्पंज के अंदर ना बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो Holes. होल्स के अंदर से वो पानी अंदर Yes. सीप करता है और पूरा स्पंज के अंदर फैल जाता है, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टाइनी spores inside the in the bulk. But why is adsorption happening? It is happening because of the unbalanced forces of the surface molecules. ये मैंने अभी बताया आप लोग को, राइट? सर रिपीट करो। नहीं, रिपीट तो मैं करूंगा। ये पॉइंट समझा तुम लोग को जो मैंने बोला अभी? यस यस Yes. हाँ, so absorption में लिखना it occurs due to presence of pores in the body of the substance. It occurs due to presence of pores in the body of the substance. और adsorption में क्या लिखोगे? unbalanced Unbalanced. It occurs due to unbalanced forces of the surface molecules. डन सर। ओके, अभी ना जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोर अबाउट एड्सॉर्प्शन, वी विल सी दैट एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो कैसे क्या वो हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी डिफरेंस के लिए क्या लिखोगे? एब्जॉर्प्शन में क्या लिखोगे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और एड्सॉर्प्शन में क्या लिखोगे? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Sir, repeat. एब्जॉर्प्शन में लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड एड्सॉर्प्शन में लिखो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डन। ओके, एब्जॉर्प्शन में लिखना there is no chemical bond formed. There is no chemical bond formed between. There is no chemical bond formed between absorbate and absorbent. जैसे हमने एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट देखा ना, वैसे एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा बेटा? डी की जगह बी, एब्सॉर्बेट एंड एब्सॉर्बेंट। ओके, Sir, repeat. there is no chemical bond formed between absorbate and absorbent. Adsorption में लिखना in chemical adsorption, chemical bond is formed between adsorbate and adsorbent. सर एक बार रिपीट करो ना। कौन सा वाला पॉइंट बेटा? सर वो एड्सॉर्प्शन का फोर्थ। Adsorption का fourth. In chemical adsorption, there is chemical bond formed between adsorbate and adsorbent. लिख लिया? यस सर। So this is an introduction to what is adsorption.
Now going ahead, we are going to see the types of adsorption. We are going to distinguish between chemical adsorption and physical adsorption. उनके क्या features होते हैं, उनके बीच में difference क्या होता है. उसके बाद we are going to see what are the factors that affect adsorption, which factors affect adsorption, what adsorption is dependent on. उसके बाद हम लोग catalysis देखेंगे, different types of catalysis, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymes का actions देखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग colloids देखेंगे. हम देखेंगे what are the different types of colloids. Then we will see how to classify the different types of colloids and so on. colloids क्या है? हाँ, वो सब पढ़ेंगे. Don't worry. Colloid is a type of solution. ठीक है? That is the third part of the chapter which we are going to see. ठीक है? तो वो हम लोग देखने वाले हैं. तो as of now, I hope everybody has understood what is adsorption. This concept of adsorption clear हुआ सबको? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा. Okay. Cool. So let us stop here for today, and then we will continue with this in our next lecture.